मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही सर। हाँ, जस्ट मिनट, कुछ तो टेक्निकल इशू था एंड दैट्स व्हाई आई एम अनेबल। अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हेलो, स्टार्ट नहीं हुआ सर। नो सर। जस्ट मिनट, क्यों ऐसा, क्यों नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन? नहीं सर। ओह, क्या हो गया आज? अभी प्रेजेंटेशन ही नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है हेलो, सर। हाँ, ओके 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 ओके, नो इशू। ड्यू टू सम technical issue as well as network issue, I was unable to connect with you within a time. I have already told you that you have to share some papers of previous examination, even though they are from descriptive mode. Examination of previous examinations are as per descriptive mode. Okay, कोई बात नहीं है. We have completed our entire syllabus and now we are going to prepare in a both mode, that is descriptive as well as objective type of examinations. In the both type we are going to prepare. क्या आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा है इसके पहले पूरा? यस, आपने सिलेबस नहीं देखा? अश्विनी, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, सिलेबस देखा है ना आपने पूरा? यस सिलेबस सर। से सिलेबस से कुछ बचा है? नहीं। हाँ, मैं आपके लिए फिर से एक बार सिलेबस शेयर करता हूँ, लेकिन एक बात और मुझे बता दो, क्या आप लोगों के पास प्रैक्टिकल का सिलेबस है इस पेपर का? हेलो, नो सर। नहीं। नहीं सर। ओके, so just a minute. History module, biological diversity. Yes, so this is our syllabus, and from this syllabus you have to prepare for your examination. Our first topic, which is related to probable ancestors of angiosperm, primitive living angiosperm, speciation and extinction. मैं थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं आपको जो हमने इसके पहले देखा है. जस्ट मिनट. प्रोबेबल चलो हम पहले पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते. सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म. अभी तो सुन रहे हैं ना क्लियर? हेलो. यस सर। हाँ, सो दिस इज रिगार्डिंग द primitive angiosperm. Now, while studying this topic, it is considered that you are well aware with the present day's angiosperm. And as far as present day's angiosperms considered, the family Orchidaceae is supposed to be one of the largest and one of the diversifying character showing family. Now, as far as dicots considered, Asteraceae family is important, while as far as monocots considered, Orchidaceae family is important. You have gone through a list of primitive as well as advanced characteristic features according to base and successive workers.
Now here our topic is related to primitive angiosperm. That means which were the primitive angiosperm. Even today or even now we consider magnolids as a primitive. I am speaking magnolids. That means group of magnolia. But as far as entire primitive angiosperms considered, five families and five important genera are like families like Magnoliaceae, Winteraceae, Digenariaceae, Himantendraceae, and Eupomatiaceae. Now the genera are like Magnolia, Dremis, Digenaria, Himantendra, and Eupomia. Remember well, we are speaking in terms of primitive angiosperm, but out of these primitive angiosperm, out of five genera which I have mentioned, except Magnolia, rest of all are almost not available throughout the world. Now these are available only in the literature or in the fossilized form. So the important primitive angiosperms are like Magnolia, Dremis, Digenaria, Himantendra, and Eupomatia. Let us, we will consider another example, that is regarding the cycas. We call cycas as a primitive fossil gymnosperm. Why we call it as a primitive and living fossil? We call it as a living fossil because it was available in a ancient time. Now it is available in the fossilized state, as well as it is available in the uh, living stage. So just like that, Magnolia is present day primitive genera among entire angiosperms supposed to be. And rest of genera like Trimis, Digenaria, Himantendra, and Eupomatia, these are not observed predominantly, or these are not observed throughout the world. Now you should be known with what is the origin of angiosperm, or what is the primitive origin of angiosperm. मैं फिर से बताता हूं, किसी चीज का ओरिजिन अगर ढूंढना है, किसी चीज की हिस्ट्री अगर ढूंढना है, तो वी ऑलवेज रिलाई ऑन एंशंट अवेलेबल लिटरेचर, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी है ऐसे हम बोल नहीं सकते. और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, पैलियो बोटेनिकल और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. So it was in the Jurassic period when angiosperm first appeared on the globe. अभी यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली फर्स्ट अपियर्ड एंजियोस्पर्म कौन से पीरियड में है, कहाँ है, कौन से एरिया में है, इसके बारे में अलग अलग थेरीज, अलग अलग कंसिडरेशन है, क्योंकि लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल टू बी एक्सकेवेटेड फॉर पैलियोबोटैनिकल पर्पस. हो सकता है कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के फॉसिल्स होंगे, लेकिन आज के डेट में वो अवेलेबल नहीं है, आज के डेट में वो देखे नहीं गए हैं. क्या आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ, आज के डेट में हम वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जहां तक अपनी पहुंच है, अपनी मालूम है, आज के डेट में जुरासिक पीरियड वाज कंसीडर्ड एज अ एंजियोस्पर्म वेयर फर्स्ट अपीयर्ड. In the early Cretaceous, angiosperms were confined to areas living between latitude 45 degree north to south. 45 degree north to south मतलब जो बेल्ट है, this belt is known as tropical belt. So tropical में angiospermic flora was gradually replacing non-flowering vegetation of the Jurassic. Jurassic में पहले जो भी non-flowering फ्लोरा था, दैट मीन्स फिर वो होंगे सपोज टेरिडोस्पर्म होंगे या कोई हायर फर्म्स होंगे, उनको रिप्लेस किया एंजियोस्पर्म्स ने. एंड in the northern part of the globe they have established themselves only in late Cretaceous period. late Cretaceous period में उन्होंने अपने को establish किया एंजियोस्पर्म ने. Teslenko proved that angiosperm existed in Siberia before the late Cretaceous. साइबेरिया कहाँ है? हेलो हेलो, साइबेरिया कहाँ है? एनीबडी? Yes, sir. साइबेरिया कहाँ है? हेलो, Russia, sir. हाँ, yes, toward the Russia. So they have established, he has said that angiosperm established in the Siberia.
साइबेरिया आपको मालूम होगा, इट इज जस्ट लाइक ग्लेशियर, वेरी कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ऑब्जर्व। और हम हमेशा बोलते हैं लाइफ एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ शिफ्ट हो रहा था। So Teslenko observed that the angiosperm did not originate in the northern part of Angaria or the ancient Angara land. Ancient Angara land में नहीं हुआ उसका कहना था। In the present century, many workers suggested tropical origin of the angiosperm. Hellier assumed that this group of plant originated in the continent uh, in the south of Pacific Ocean. आपको मालूम है कि Pacific Ocean is supposed to be largest ocean of the world, but no such a continent ever existed. लेकिन ऐसा continent existed ही नहीं था। हम इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि प्रीवियस वर्कर्स का कहना क्या था। However, other workers, that is Dale Golenkin, Bailey, Axelrod, A.C. Smith, Thorne, etc., all agreed that cradle of angiosperm was situated in South Pacific or western part of South Pacific. पॅसिफिक का मतलब आहे, हम बोलते प्रशांत महासागर, तर प्रशांत महासागरातलं जे क्षेत्र आहे ते क्षेत्र यांचं ओरिजिन समजलं गेलं होतं. It is a wide area stretching from Assam in the west and Australia in the Fiji Island, West Indies जवळची, in the east, including Burma, South China and Japan. मतलब हर एक का कंसिडरेशन अलग अलग है. There is no any fixed point where these angiosperms started to originate. मलेशिया, न्यूजीलैंड, न्यू क्लेडोनिया एक्सेट्रा. देखो मलेशिया एशिया में आ गया, न्यूजीलैंड नॉर्थ पोल की तरफ आ गया, न्यू क्लेडोनिया ऑस्ट्रेलिया यानी साउथ पोल की तरफ आ गया. The fossil evidences do not indicate the exact center of origin, but these establish the fact that angiosperm arise in the tropical belt and spread to higher latitude areas. ट्रॉपिकल बेल्ट का मतलब अभी हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं 45 डिग्री टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ, और इस बेल्ट में एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था. नाउ यू आर वेल नोन विद द primitive as well as advanced characteristic feature. According to Besse, there are large number of different primitive and advanced characteristic features of angiosperms were considered. अब कैरेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, ओवरऑल हमें पता चाहिए कि क्या प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स थे. वुडी हैबिटेट वाज प्रिमिटिव, लीव्स अल्टरनेट, सिंपल, एंटायर, पिन्नेटली नर्व्ड इज स्टिपुलेट कैरेक्टर एंड स्टिपुलेट इज प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर. आपको अभी पिन्नेटली और पामेटली इसके बारे में अच्छी आइडिया है. फॉर एग्जांपल पाम में हम बोलते हैं पामेटली लोब्ड लीव्स है, और पिन्नेटली पिन्ना में. Leaves lobed in a bud showing conduplicate type of estivation. Primitively organized water conducting tissue that is xylem specifically, so it is primitively organized. Wood tracheids with scalariform bordered pits. Wood के जो tracheiry elements है, these are border showing presence of bordered pits. Sieve elements long, शायद आपको पता है बॉर्डर पिट्स, सिव एलिमेंट्स, ये सभी फ्लोएम के टिश्यूज है, विथ वेरी ऑब्लिक एंड वॉल्स. वेस्कुलर रेज आर हेटेरोजिनस. नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं. लार्ज सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर्स ऑन द ब्रांचेस, फ्लावर्स रेडियली सिमेट्रिकल with large number of floral parts arranged spirally on the elongated thalamus. इसलिए आप मैग्नोलिया में देखो elongated thalamus पर spirally arranged gynosium या spirally arranged large number of androsium also observed. All the perianth parts are morphologically similar. मतलब हम बात नहीं कर सकते कि ये कैलिक्स है, ये करोला है. Flowers insect pollinated. Stamens broad, laminar, structures not differentiated into filament and connectivity, monocolpate pollen grain, carpels leaf like, मतलब स्टैमेन जैसे ब्रॉड लैमिनार है वैसे ही कार्पेल्स आर आल्सो लीफ लाइक, फोल्डेड along the midrib with many ovules. Petiole like type is present. Carpel not completely closed during pollination. Completely closed नहीं होते थे. Style absent and stigma is recurrent. So whatever these characteristic features which we have considered already, these characteristic features
is set of primitive characteristic feature. जो भी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हम देख रहे हैं उसमें इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने मिलेंगे. मतलब ऑर्गेनिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ many more primitive characteristic feature and some of the advanced features of then that time. जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी प्लांट के बारे में आप बोल रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर प्रिमिटिव होंगे और कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर होने के चांसेस है, बिकॉज प्लांट जिस टाइम पीरियड में मिला उस टाइम पीरियड के जो इवॉल्व कैरेक्टर्स है वो भी उसमें रहेंगे. In spite of the fact, now we are going to study the primitive angiosperms and one of the example is Magnolia grandiflora. हम माइकेलिया चंपका नहीं देख रहे, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा. इसके फ्लावर्स जो है व्हाइट कलर के फ्लावर्स है. आपके ध्यान में आ रहा है? हेलो, यस सर. मायकेलिया चंपका किंवा सोनचाफा आपण ज्याला म्हणतो तो सोनचाफा पिवळसर रंगाचा असतो. On the contrary, Magnolia grandiflora is the genera with white flower and Magnolia में हम elongated या फ्लावर की लेंथ ज्यादा और ब्रेथ कम देखते हैं. लेकिन इन केस ऑफ Magnolia grandiflora लेंथ एंड ब्रेथ इज ऑलमोस्ट सेम और इसलिए फ्लावर बड़ा रहता है. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बी एंड सी. अब बी में आप देख रहे हैं दिस इज एंथर और कैसा है लीफी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लैटरल साइड को आपको एंथर दिखाई देगा. यहाँ देखो बहुत सारे एंथर्स और ये लार्ज नंबर ऑफ कार्पेल्स आर आल्सो ऑब्जर्व. सो मैग्नोलिया इज सपोज टू बी प्रिमिटिव. मैं फिर से बताता हूँ. Now, as far as Magnoliaceae family considered, even now some of the genera are available. कुछ genera Magnoliaceae के available है. For example, Michaelia champaka that also belongs to Magnoliaceae. Michaelia champaka भी Magnoliaceae से belong करता है. Just a minute. So, just genus represented by 120 species distributed in tropical. फिर से देखो हम 45 डिग्री टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ बात कर रहे थे. दैट इज द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट. दैट मीन्स ब्रॉडली ट्रॉपिकल बेल्ट. अभी भी मैग्नोलिया का ओरिजिन अगर देखा तो ट्रॉपिकल बेल्ट में है. 12 स्पेसीज ऑकर इन इंडिया एंड मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा इज कॉमनली कल्टिवेटेड जनरा. क्या आप लोगों में से किसी ने मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा का प्लांट एंड फ्लावर देखा है? हेलो, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा का प्लांट और फ्लावर किसी ने देखा है? हेलो, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा का फ्लावर एंड प्लांट किसी ने देखा है क्या? नहीं सर. जस्ट मिनट, हम देखते मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा. जस्ट मिनट, यहां भी दिख रहा है. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर. जस्ट मिनट, मेरा आज लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है एंड दैट्स व्हाई आई एम. क्या आपको फ्लावर की इमेज दिख रही है? यस सर. हेलो, क्या आप बता सकते हैं ये फ्लावर का कलर कौन सा है? जस्ट मिनट, ये फ्लावर का कलर कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं तो इस फ्लावर का भी बता सकते हैं. कलर कौन सा है? वाइट. व्हाइट. मैंने फिर से आपको बताया था माइकेलिया चंपका भी मैग्नोलिया से बिलोंग करता है. लेकिन माइकेलिया चंपका का फ्लावर जो है, फिर से देख लेते हैं. माइकेलिया चंपका हम जिसको सोन चाफा बोलते हैं, फ्लावर अगर आप देखोगे तो कलर कौन सा है? गोल्डन येलो. लेकिन उसी जगह हमने माइकेलिया ग्रैंडिफ्लोरा देखा. माइकेलिया ग्रैंडिफ्लोरा का कलर अगर देखा तो दिस कलर इज व्हाइट. मैं इसका ट्री दिखाता हूँ या हैबिट देखते हैं. फिर से देख लो, ट्री बड़ा ट्री है, छोटा ट्री नहीं है. ट्री कंपैरेटिवली बड़ा है और फ्लावर्स अगर आप देखोगे तो साइज में फ्लावर्स बहुत लंबे और चौड़े ऐसे यानी स्क्वायर जैसा ये है. लेकिन माइकेलिया में हमने देखा था फ्लावर इज इलोंगेटेड. डिफरेंस ध्यान में आ रहा है?
हेलो, डिफरेंस, Yes, sir. हाँ डिफरेंस ध्यान में आ रहा है। हम माइकेलिया की बात नहीं कर रहे, हम मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा की बात कर रहे हैं। इट इज एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्री एंड श्रब, लीव्स अल्टरनेट, एंटायर एंड पिन्नेटली with large deciduous stipules enclosing young body, फेसल्स प्रिमिटिव। हमेशा के लिए ध्यान में रखो, टिश्यू जो है खास करके वेस्कुलर टिश्यू में हम जाइलम और फ्लोएम, ये दो टिश्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं। हालांकि कैम्बियम भी जरूरी है। जाइलम कंपोज्ड ऑफ और कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियरी। जाइलम में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं? हेलो, जाइलम, पेरेंकाइमा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। while in case of phloem parenchyma, उसके बाद sieve tubes, sieve plates and companion cells. So vessels are primitive. Wood parenchyma is usually terminal. Nodes multi-acunar with several leaf traces. Leaf traces ज्यादा है। फिर यहाँ देखो मैग्नोलिया में, हम मैग्नोलियासी फैमिली नहीं देख रहे, हम मैग्नोलिया जनरा एज अ प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंजियोस्पर्म देख रहे। Flowers large, solitary, terminal, bisexual, actinomorphic, hypogynous. Elongated floral axis shown spiral arrangement of floral parts. पेरियांत तो आपने देखा, बहुत सारे पेरियांत थे व्हाइट कलर के, न्यूमरस फ्री एंड स्पाइरली अरेंज्ड स्टेमेंस। फिर देखो पोलन मोनोकोल्पेट कोल्पाई, that is lateral colpi are available and they are single, pollen monocolpate. Gynosium composed of many spirally arranged carpels, बहुत सारे स्पाइरली अरेंज्ड कार्पेल्स है। एम्ब्रियो स्मॉल एंड एंडोस्पर्मिक, एम्ब्रियो स्मॉल है, एंडोस्पर्मिक है। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बीज एंड बिटल्स। पहला जनरा हो गया मैग्नोलिया विच इज प्रिमिटिव। दूसरा जनरा ड्रीमिस, विंटरेसी से बिलोंग करता है। आप यहां भी देख सकते हैं डायग्राम डी जो दिखाई गई है, दैट इज ऑफ कार्पेल या गाइनोसियम। यहाँ आप देख सकते हैं कि लीफी गाइनोसियम दिख रहा है। सो यहाँ लेबल किया है, देखो ए फ्लावरिंग ट्विग है, बी बड है, सी एंटायर फ्लावर है, फ्लावर यहाँ है, और डी जो है दैट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम के बारे में मैंने बताया, इट इज लीफी एंड दिस वन इज द पोर्शन ऑफ अ कार्पेल। नाउ रिमेंबर दिस ड्रीमिस जनरा वाज अवेलेबल इन विच एरिया? आप जस्ट देख लो, न्यू गिनिया, न्यू क्लेडोनिया, ऑस्ट्रेलिया, टास्मानिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अमेरिका। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और खास करके ऑस्ट्रेलिया एंड एडजॉइनिंग आइलैंड्स जो है वहां। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स विथ अल्टरनेट सिंपल एंटायर पिन्नेटली वेन ग्लैंड डॉटेड एरोमेटिक एक्सटिपुलेट लीव्स। आप लीफ देखते हैं तो आपको पता चलेगा लीफ के मार्जिन की तरफ एक वेन कंटिन्यूअस रन कर रही। और शायद आपने ऐसे ही सिट्रस के लीफ भी देखे, सिट्रस में ग्लैंड डॉटेड पोर्शन रहता है, दैट्स व्हाई आप लोगों को सिट्रस की खुशबू आती है, एरोमा मिलता है। एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन वुड, आपको पता है प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, लेकिन यहाँ एब्सेंस ऑफ वेसल्स दिखता है। फ्लावर्स बॉर्न इन फेसिकल्स, फेसिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। फ्लोरल एक्सिस शॉर्ट, perianth is whorled and differentiated in a calyx and corolla. Several stamens arranged in a low spiral. Low spiral में several stamens are arranged. Pollen grains are comparatively advanced, showing presence of circular pore and reticulate ensign of pollen. Carpel primitive type, petiole like type is present. अभी अभी आपने कार्पेल देखा था, so this is regarding the ड्रीमिस जनरा ऑफ विंटरेसी। फिर बाकी कैरेक्टर भी आप देख सकते हैं, फ्रूट्स मेनी सीडेड, फॉलिकल विदाउट एंडोस्पर्म एंड स्मॉल एम्ब्रियो। क्या आपसे मैंने सीड और फ्रूट ऑफ माइकेलिया शेयर किए थे? हेलो, माइकेलिया चंपका या सोनचाफा के फ्रूट्स और सीड की फिगर मैंने शेयर की थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर। क्या आपने माइकेलिया या सोनचाफा के फ्रूट्स नहीं देखे?
देखिए अच्छा सर। देखिए, ओके, तो वहां आपके ध्यान में आ गया व्हाई आई एम से, ध्यान में आएगा व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ फॉलिकल। फिर देखिए नेक्स्ट जनरा फैमिली डिजिनारिएसी एंड जनरा इज डिजिनारिया। आप यहाँ भी गाइनोसियम देखे, पेपिलेट और थोड़ा सा लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो डायग्राम ए इज अ ट्विग, बी इज एलिस ऑफ ओरी, दिस वन, सी इज गाइनोसियम, डी इज माइक्रोस्पोरेंजिया, ये डी जो है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज एंथर। सो ड्रीमिस विंटरेसी के बाद डिजिनारिया, डिजिनारिया में भी देख लो, वुड शो प्रेजेंस ऑफ थीन वॉल्ड वेसल एलिमेंट्स। मैं बार बार बता रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, लेकिन यहाँ वेसल्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बदलाव दिख रहे। नेट वेन एंटायर लीव्स आर विथ स्टिप्यूल्स, फ्लावर्स लॉन्ग पेडिसिलेट, लीफ देख लो, लीफ को ये जो पिटियोल है लॉन्ग है। फिर देखते floral axis short, perianth cyclic, single series of 3 persistent sepals, 12 to 13 fleshy deciduous petals in 3 or 4 series. Stamens and carpels primitive, stamens many undifferentiated into filament and connectivity. Pollens very primitive monocolpate type. मैं फिर से आपको बता रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ मोनोकोल्पेट टाइप इज प्रिमिटिव टाइप। हालांकि हम साइमल्टेनियसली सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसिडर कर रहे हैं, उसमें से नंबर ऑफ एंथर्स, नंबर ऑफ कार्पेल्स बहुत होना, स्पाइरली अरेंज्ड होना, लीफी स्ट्रक्चर लाइक होना, पेरियांथ का प्रेजेंस, पेरियांथ नॉट डिफरेंशिएटेड, और कैलिक्स करोला नॉट more differentiated or there is no differentiation. These are primitive characteristic features. Gynoecium, number of carpel reduced to 1. Margin of carpel are completely free. Style is absent. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टाइल इज एब्सेंट, ये स्टिग्मा है, स्टाइल बहुत शॉर्ट है। आ रहा है ध्यान में? यस सर। पोलन, सो फ्रूट लार्ज, लेदरी, असिमेट्रिकल एंड इनडिहाइसेंट, मतलब डिहाइस नहीं हो रहा है। सो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ, एक्चुअली दिस डायग्राम इज डायग्राम ऑफ एलेस ऑफ, ये एलेस ऑफ ओरी है, ये गाइनोसियम का पोर्शन यहीं पे आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिस इज माइक्रो स्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन, एंड दिस वन इज द पोर्शन ऑफ अ फ्रूट, या दिस वन इज आल्सो पोर्शन ऑफ अ फ्रूट, दिस वन इज अ बर्ड। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनरा इज हिमेंटेंड्रा। हिमेंटेंड्रा की ट्विग और माइक्रोस्पोरोफिल, फिर से आप यहाँ देखोगे कि माइक्रोस्पोरोफिल या एंथर इज जस्ट ए लीफी, फ्लावर दिख रहा है, यहाँ बर्ड दिख रही। फिर यहाँ भी देखो मार्जिन की तरफ पैरेलल वेन है, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? यस सर। यानी हमने अभी तक जनरा कौन कौन से देखे? हमने जनरा कौन कौन से देखे? मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, ड्रीमिस, देन डिजिनारिया, देन हिमेंटेंड्रा। अब हिमेंटेंड्रा में भी देखो मोनोटाइपिक जीनस ऑफ फैमिली हिमेंटेंड्रेसी, मोनोटाइपिक मतलब ओनली वन जनरा with restricted distribution in northeast Australia, New Guinea, trees densely covered with brown fimbricate peltate scales. Leaves alternate, simple, entire, pinnately veined and exstipulate. Flowers solitary, terminal, perianth differentiated into calyx and corolla. Androecium shows presence of many free stamens. Staminodes petaloid, petal-like है staminode. Microsporangia are immersed in a sterile sporophytic tissue. हिमेंटेंड्रा का डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं। फिर से देखो पोलन मोनोकोल्पेट, Gynoecium composed of 6 to 15 spirally arranged carpels, seeds oily endosperm and very small embryo. उसके बाद यूपोमेटिया, अगेन यूपोमेटिया के बारे में भी देख लो। फिर से ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, मतलब साउथ कॉन्टिनेंट की तरफ इन ओरिजिन, जो भी हम 5 प्लांट देख रहे हैं उनका दिख रहा है। Shrubs, small tree with alternate simple entire pinnately veined stipulate leaves. Vessels consists of oblique end wall. फिर से हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर वुड या स्टेम के वेसल्स की तरफ आते हैं, which are showing these are primitive type. Stamens many attached on hollow receptacle. Pollens 2 to 3 furrow.
pollination by beetles. So these are the characteristic feature again in case of Eupomatia. So remember, whenever you come across the primitive angiosperm, you have to write down the characteristic features of Magnolia, Trimis, Digenaria, Hemantandra, and Eupomatia. So we have completed this part earlier. मैं फिर से आज सिर्फ रिवाइज किया कि it which consists of Magnolia, Dremis, उसके बाद Digenaria, Hemantandra, and Eupomatia. इसके पैरेलली हमने एक टॉपिक और भी देखा था एंड दिस इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म हमने देखा, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हमने देखा, और प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स के बारे में क्या हमने डिस्कशन किया था? हेलो, यस सर। प्रेजेंट डेज एंजियोस्पर्म के बारे में शायद हमने डिस्कस किया था। अभी अभी भी मैंने आपको बताया कि एडवांस्ड या प्रेजेंट डेज एंजियोस्पर्म्स में फैमिली ऑर्किडेसी, फैमिली एस्टेरेसी, दीज आर एडवांस्ड फैमिलीज। एस्टेरेसी और ये फैमिली जो है एडवांस्ड फैमिलीज है। देन व्हाट अबाउट एबॉमिनेबल हिस्ट्री? हेलो, एबॉमिनेबल नहीं, हेलो, एबॉमिनेबल मिस्ट्री के बारे में हमने इसके पहले एक प्रेजेंटेशन देखा था। जस्ट मिनट, एबॉमिनेबल मिस्ट्री का प्रेजेंटेशन अगर देखते हैं तो एबॉमिनेबल का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, जो थोड़ा सा लॉस्ट पोर्शन है, दॅट इज एबॉमिनेबल। और मिस्ट्री म्हणजे आपण म्हणतो गूढ किंवा रहस्य। आ रहा है ध्यान में? एबॉमिनेबल मिस्ट्री, बहुत बार आपको एबॉमिनेबल मिस्ट्री पर क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट नोट। शुरू के पहले स्लाइड में आपने देखा होगा ये जो डायग्राम है, फोटोग्राफ जो है, दिस फोटोग्राफ इज ऑफ चार्ल्स डार्विन हु हैज first time used the word that is abominable mystery. So Charles Darwin has used the word abominable mystery come to symbolize just about all aspects and origin and early evolution of flowering plant. शायद आपको मालूम है, सभी लोगों को मालूम है Darwin's theories of evolution which are much famous. Yet there has never been analysis of precisely what Darwin thought was abominable mysterious. एबॉमिनेबल मिस्टेरियस के बारे में डार्विन के थॉट क्या थे, इसके बारे में अभी भी लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी किया नहीं है। Here I explicate Darwin's thought and frustration with fossil record of flowering plants as revealed in correspondence with Joseph Hooker, Gaston de Saprota, Oswald Herr between 1875 to 1881। मतलब आप देख रहे हैं कि टुवर्ड द लेट 19th century what was the consideration of peoples of that time regarding mystery of angiosperm। मैं हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग मिस्ट्री म्हणजे मी सांगितलं गूढ किंवा रहस्य। जसं आपण अजूनही म्हणतो भूत आहे की नाही, चेटूक आहे की नाही, किंवा व्हॉट एव्हर दिस सच अ टाइप ऑफ मायथॉलॉजिकल स्टोरीज अस्तित्वात आहेत की नाही, हे सगळं रहस्य आहे, गूढ आहे। तसं history of angiosperm is a mystery. I also examined the essay by John Ball that promoted Darwin's to write his abominable mystery, letter to Hooker in July 1879. Contrary to what is generally believed, Darwin's abominable mystery has a little, if anything, to do with fossil prehistory of angiosperms, identification of closest relatives of flowering plant, question of homologies, that is similarities and transformation of characters, of defining features of flowering plant or the phylogeny of flowering plant themselves. नेक्स्ट देखते। सो मिस्ट्री क्यों और कैसे थी, इसके बारे में हम इसके पहले देखा है। Darwin's mystery and his abiding interest in radiation of angiosperm were never driven
primarily by need to understand the literal text of evolutionary history of flowering plant. डार्विन ने जो भी दिया था रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म उसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ. डार्विन was deeply bothered by what he perceived to be an abrupt origin. abrupt का मतलब क्या है? Anybody? हेलो. abrupt का मतलब क्या है? क्या आप सुन रहे हैं ना? Yes, sir. abrupt का मतलब क्या है? Sir, unexpected. अनएक्सपेक्टेड किंवा अचानक झालेला. जसं तुम्ही म्हणता म्युटेशन तसंच abrupt change. So Darwin was deeply bothered by what he perceived to be an abrupt origin and highly accelerated rate of diversification of flowering plant in mid-Cretaceous. This led Darwin to create a speculative argument for long, gradual and undiscovered pre-Cretaceous history of flowering plants on lost island or continent. मतलब डार्विन का कहना ऐसा था कि जो आइलैंड अभी अस्तित्व में नहीं है ऐसे लॉस्ट आइलैंड्स पर एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए थे, ऐसे स्पेक्यूलेशन था उसका. डार्विन आल्सो लुक रेफ्यूज in the possibility that rapid diversification of flowering plant in the mid-Cretaceous might, if real, have biological explanation involving co-evolutionary interactions between pollinating insects and angiosperm. मतलब pollinating insects और angiosperm इनमें interaction था और उसीलिए कहा जाता कि insect pollination is primitive characteristic feature. On the contrary, Darwin's abominable mystery is about his abhorrence that evolution could be both rapid and potentially even saltational. Through the last year of his life, it just so happens that flowering plant among all group of organisms presented Darwin with most extreme exception to his strongly held notion natura non facit saltum. Nature does not make a leap. मैं अभी बहुत डिटेल में अबॉमिनेबल मिस्ट्री के बारे में नहीं जाऊंगा, हमने ये सभी चीजें पढ़ी है. आपको इसकी नोट भी मैंने ऑलरेडी शेयर की है. कुछ पेपर जो है ये पेपर और वेब लिंक भी मैंने दी है. Charles Darwin abominable mystery has come to symbolize just about all aspects of origin and early evolution of flowering plants. मैं फिर से अभी एंजियोस्पर्म के बारे में स्टेटस या जो भी मुझे फाइनली कहना है वो बताता हूं. नो डाउट एंजियोस्पर्म्स आर हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ presently present group of plants. Once upon a time when there are hornworts, liverworts and later on pteridophytes, specifically pteridosperm group was predominant, which immediately followed by the gymnosperm. Simultaneously on our planet, large number of changes, climatic changes are observed, and shifting of aquatic life to terrestrial life was a continuous process. Now regarding the angiosperm, even if they are spread or present nowadays in a dominant way, it should be considered that angiosperms, the suitable climatic conditions observed during this time, and hence angiosperms were flourished in a recent time because climatic conditions are more favorable to angiosperm. Second interesting fact was angiosperms were adjustive to present day climatic conditions. हम आज भी देख रहे हैं कुछ जनरा रिप्लेस हो रहे, कुछ जनरा एक्सटिंक्ट हो रहे, कुछ नए जनरा दिख रहे because of only the fact that angiosperms are more adjustive as compared to rest of liverworts, hornworts, pteridophytes, gymnosperms and many more other groups also. So in next future, angiosperm may be replaced by another advanced group of plant. मैं नेक्स्ट फ्यूचर में बोल रहा हूं, दैट इज मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स आफ्टर टुडे. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को रिप्लेस किया गया, जिम्नोस्पर्म को रिप्लेस किया गया. आज की डेट में हम देख रहे हैं नॉट मोर देन 1000 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर अवेलेबल.
थाउजेंड डिफरेंट मीन्स अलग अलग अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि इन द नेक्स्ट सक्सेसिव फार फ्यूचर एंजियोस्पर्म्स विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट विच मे बी ए हाईली इवॉल्व ग्रुप ऑफ प्लांट, लेकिन एट प्रेजेंट एंजियोस्पर्म इज इवॉल्व ग्रुप। मैंने कुछ पेपर्स आपको शेयर करने के लिए बताया था। हेलो, कुछ Yes, sir. पुराने पेपर्स कुछ शेयर करने के लिए बताया था। आप में से किसी ने पेपर शेयर नहीं किए। मैंने 2-3 प्रेजेंटेशन भी मुझे आपको देना था, वो भी देना मेरे से नहीं हुआ है। मैंने कुछ फोटोग्राफ उस दिन शेयर किए थे, उन फोटोग्राफ्स को एक बार हैंडआउट शेयर किया था मैंने, शायद हिडायत इलेसी का। और फोटोग्राफ में देख लो, मैंने बताया था आपको कि जुलाई या जून 17 में मैं जहाँ गया था वहाँ विक्टोरिया अमेजोनिका, ये है प्लांट दॅट इज बॅबोआ प्लांट किंवा तुम्ही म्हणता ॲडन्सोनिया डिजिटॅटा किंवा गोरखचिंच. I was at Shivaji University, Kolhapur after a long time of about 25 years. That was my parent department. And when I was studying MSc, that is period of 1986 to 88, during that period, Professor Yadav had just joined 2-3 years. म्हणजे यादव सर मला वाटतं 85-86 ला जॉईन झाले आणि त्याच वर्षी मी MSc ला गेलो होतो. During that time, I have opportunity to learn many more things regarding angiosperm from Professor Yadav. लेकिन ज्याला आपण मराठीत दुर्दैव म्हणतो, त्यावेळेला मला अँजिओस्पर्म मध्ये इंटरेस्ट होता, पण अँजिओस्पर्म स्पेशलायझेशन वॉज नॉट अवेलेबल इन शिवाजी युनिव्हर्सिटी. पण माझी अँजिओस्पर्म शिकण्याची ती हाऊस मी 2016-17 मध्ये शिवाजी विद्यापीठात मी जाऊन एक 7 दिवसाचा कोर्स केला होता, तेव्हा पूर्ण केली होती. आणि त्यावेळेला अर्थात मी फोटो काढलेला असल्यामुळं मी याच्यात दिसत नाही. I have gone through one workshop for 10 days at Shivaji University and worked with Professor Yadav after a period of about 32 years. ठीक है, पुढे बघूया. मैं हमेशा आपको 3-4 चीजों का जिक्र करता हूं, जिसमें मैंने पैपिलियोनेसी में लिया था, तब मैंने शायद आपसे बात की थी. हा जो शेकरू आहे म्हणजे फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन फ्लाइंग स्क्विरल, महाराष्ट्राचं सिंबॉलिक प्राणी म्हणलं जातो किंवा शेकरू, हरियल, उसके बाद ब्लू मॉर्मॉन बटरफ्लाय, आंबा आणि आपलं सगळ्यात महत्वाचं जारूल किंवा बोंडोरा, दॅट इज लॅजिस्ट्रोमिया स्पॅसिओजा. तर हे चारही महाराष्ट्राचे निसर्ग मानचिन्ह त्यावेळेला मी घेतलेले फोटो आहेत. ठीक आहे, आता त्याचा हे नाही आहे, पण फक्त मी काय शेअर केलं होतं तेव्हा तुमच्या सोबत तो पार्ट आपण बघतोय. फ्लावरिंग आहे विक्टोरिया अमेझॉनिकाचं. एक दुसरं मी इथं शेअर केली होती तुमच्याकडं, कदाचित तुम्ही बघितलं असेल, तिथला बोर्ड शेअर केला होता मी 1986-88. त्यावेळच्या MSc चा फर्स्ट मेरिट होता माझा. मुद्दाम सहजासहजी पुष्कळ वर्षानंतर मी डिपार्टमेंटला गेलो होतो, म्हणून तो बोर्ड शेअर केला होता. दुसरा एक बोर्ड तुम्ही इथं बघितला असेल, इथं तुम्ही एक नाव बघितलंय का बघा, एमुल सरांचं नाव आहे का इथं कुठं? Yes, sir. हा, because he is also from the same department and he has qualified SET and GATE examination. त्याच्यामुळे तुम्हाला समवेअर इथे एमुल सरांचंही नाव दिसलं असेल. तर मी 2007 ला गेलो होतो, म्हणून मी त्यावेळेचे काही फोटोग्राफ्स मुद्दाम टाकले होते. बाकी जस्ट अ मिनिट, कोणी पेपर शेअर केलेले आहेत का? अभी किए क्या जयंत? जयंत आज ही किए क्या? ओके ओके, तो आज किए हैं, तो हम इन पेपर्स को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं. एक्चुअली मुझे थोड़ा आज दूसरे जरूरी काम के लिए 12 बजे जाना था, लेकिन कुछ लिया नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए करके मैंने आज मेसेज भी डालने की कोशिश की थी, आई विल नॉट टेक टुडेज लेक्चर म्हणून. पण मला 12 वाजता ज्याच्याकडे जायचं होतं त्यांचा सकाळीच मला परत फोन आला की तुम्ही 12:30-1 पर्यंत आलात तरी चालेल, म्हणून मग मी छोटासा हे करायचा प्रयत्न केला. आय नो दॅट आय हॅव टिल नॉट शेअर्ड नोट ऑफ 3 फॅमिलीज. ठीक आहे, काय हरकत नाही. उद्या परवा 2 दिवस मला जो वेळ मिळेल त्याच्यात मी हा नोट शेअर करतो.
यू प्लीज कंटिन्यू युअर स्टडी. काही प्रॉब्लेम असेल तर मला विचारा, पण आपण आज मात्र इथं थांबूया. तुम्ही तुमचा पाठ जो आहे तो कंटिन्यू करा. चालेल? हॅलो. Yes, sir. ओके, Yes, काही sir. प्रॉब्लेम? Yes, sir. हा. आणखी काही हे आहे का, म्हणजे जिथं तुम्हाला काही अडचण आहे किंवा तुम्हाला एखादा